the private room. This is for the stable patients. Okay. This is second private room. This is the for specialty patient on ventilator. So we have the ventilator and monitoring. Okay. This is the ICU. Okay. The two-bedded ICU Mm-hmm. and ventilator and monitor and oxygen, all things. Recovery ICU room. 5-bedded recovery ICU. Oxygen is also there. All things oxygen, HFA and suction machines also. This is the operation theatre with lab room. The anesthesia machine, laparoscopy system. जी. So the pharmacy. This is the pre-operative area. Before surgery, patient preparation to with this bed. ऐसे ओपन ही रखेंगे इनको. Yes, this is the open, only pre-anesthesia checkup. Okay. Doctor's lounge. This is the doctor lounge. Okay. This is the second operation theatre for the especially knee replacement. This is the Siam new technique. Okay. ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਬੰਸਲ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਆਰਿਆ ਜੀ ਜੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਤਰਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ देहरादून तो गवर्नर साहब से ये साढ़े पहुंचे ने। साढ़े इस हॉस्पिटल जिहड़ा बनाया इहदे जो मेडिकल डायरैक्टर साढ़े गिल साहब जो साढ़े बड़े बुजुर्ग भी ने सानू हर एक पॉइंट पे गाइड कर रहे हैं। Dr. Gill, I was professor and had orthopedics PG at Chandigarh, and then I was vice chancellor of Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot, Punjab. Now I am working with Sabharwal ji, and we have started this concept of Tera hospital here, starting indoor facilities here in this hospital, where we will be having 2 operation theatres, and in these 2 operation theatres we will be operating both orthopedics problems, general surgery problem, gynae problems, urology problem, and any other, and eye surgeries also, complicated eye surgery we will be doing here. We have all the super specialists with us, and we have a very good anesthetic team which will be managing the pain and anesthesia problem of this hospital. We are trying कि first ਜਿਹੜੀ 113 surgeries ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ free of cost ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ. Then this will be very highly subsidized services will be given here. First come first service. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 113 ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਟਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਹਿਸਟੈਕਟਮੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਐਬਡੋਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। सर 113 सर्जरी के बाद क्या चार्जेस रहेंगे किसी भी पेशेंट के लिए यहाँ पे किसी भी तरह की सर्जरी करवाने के लिए? दिस विल बी हाईली सब्सिडाइज। 13 रुपए भी हो सकता है, 113 भी हो सकता है, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1313 ਰੁਪਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ 13 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਦਰ ਦੈਨ ਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਈ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿਓਰਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ, ਸਟੇਟ, ਕਲਰ, ਰਿਲੀਜਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। हेलो, आई एम डॉक्टर MS रंधावा। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आई एम फ्रॉम PGI। प्रीवियसली आई डिड माई MCH फ्रॉम PGI चंडीगढ़। तो मैं 13 मिशन हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो यहाँ पे हम पेशेंट्स की यूरोलॉजी की जो किडनी स्टोन्स, प्रोस्टेट या और भी यूरिन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व करेंगे। और ये सर्जरी बिल्कुल चैरिटेबल रेट पे, जैसे भी हमने बताया पहले, उस पे होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट हम OPD कर रहे हैं। और इवन कि हम जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो भी बड़े कम दाम पे कर रहे हैं, जो भी चैरिटेबल रेट्स होंगे। सर्जरीज़ हैं वो हमने यहाँ पे अराउंड 13,000 रखा हुआ है, 13,313 और 113, दैट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट। इवन की हाँ नहीं होती, इवन की जो इनिशियल सर्जरीज़ हैं वो मोस्टली हम कई तो फ्री भी करेंगे इनिशियली। ये भी हमारा प्लान है कि हम इनिशियल 113 सर्जरीज़ मोस्ट लाइकली, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है, कि वो हम फ्री करेंगे जो बुकड हो चुकी हैं। यस, आने लगी, शुरू हुई है। मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत कौर है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं 13 मिशन हॉस्पिटल में पिछले 2.5 साल से इस ट्रस्ट के साथ काम कर रही हूँ। गायनी में हम हर तरह की सर्जरीज़ करेंगे। बच्चेदानी का प्रोलैप्स, बच्चेदानी में रसौली, फाइब्रॉइड का अलग से रिमूवल, मायोमेक्टमी एंड अंडेदानी में सिस्ट होना, ट्यूब्स का बंद होना, इन सब का हम ऑपरेशन करेंगे। यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी कॉस्ट के कारण या किसी भी कारण से किसी को किसी भी सर्जरी से अगर किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो वो यहाँ आए। हमारी जो सर्जन्स की टीम है, एक्सट्रीमली ट्रेंड और एक्सपीरियंस सर्जन्स हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ सर्जन्स गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर्ड हैं। अब किसी को भी किसी भी तरह की सर्जरी, कैंसर की सर्जरी, बच्चेदानी की सर्जरी, पथरी की सर्जरी, किसी तरह का ट्रीटमेंट डिले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा सर्जिकल सेंटर खुल गया है जिसका एम ये है कि मरीज़ का बेस्ट इलाज समय से हो। इस पहली 113 सर्जरीज़ तो फ्री होनी है, बाद में भी जो भी मरीज़ आके कहेगा कि उसके पास नहीं है या जितना है उसमें उसका इलाज किया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर विकास गोयल है। आई एम अ स्पेशलाइज्ड कैंसर सर्जन एंड जनरल सर्जन। I am in this field for the last 20 years and I have my experience from Tata Memorial Hospital for the 3 years and I am into this practice for the last 15 years in Chandigarh। 6 महीने से 13 मिशन हॉस्पिटल के जो भी स्पेशलाइज केसेस होते हैं मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। लैंडमार्क हॉस्पिटल में मैं एसोसिएटेड हूँ। तो कंसेशनल रेट्स पे हम उनकी कैंसर सर्जरीज और जनरल सर्जरीज करते आ रहे हैं। अब ये अस्पताल खुल गया है तो यहाँ पे हम लोग जनरल सर्जरीज और कुछ भी कैंसर के पेशेंट्स होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कंसेशनल रेट्स पे लैंडमार्क हॉस्पिटल में ऑपरेट किया करेंगे। यहाँ OPD होगी, सारे पेशेंट्स यहाँ देखे जाएंगे, काउंसलिंग यहाँ करी जाएगी। जिनको लगता है कि जो केसेस हम लोग यहाँ पे स्पेशलाइज नहीं कर सकते, जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी ICU वगैरह की, उनको हम लोग वहाँ करेंगे। 90% केसेस हम लोग यहीं पर किया करेंगे। सर, किस तरह के केसेस देखेंगे इनिशियली आप जो कैंसर? यहाँ पे गॉल ब्लैडर सर्जरीज, हर्नियाज, अपेंडिक्स, कैंसर ब्रेस्ट, थायराइड के केसेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैं डॉक्टर करणदीप सिंह सियाल, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। मैं यहाँ 13 मिशन हॉस्पिटल से पिछले 6 से 7 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पेशेंट्स के क्लियरेंस के लिए और उनका कार्डियोलॉजी पार्ट देखूँगा, जो नॉन इंटरवेंशन पार्ट है। इंटरवेंशन हम अभी शुरू नहीं करेंगे। इंटरवेंशन हम थोड़े समय बाद जब यहाँ पर कैथ लैब का इंतज़ाम हो जाएगा तब शुरू करेंगे। काफ़ी पेशेंट्स एनरोल हो चुके हैं हमारे पास, पूरी लिस्ट है हमारे पास। सर, 45 में जो 13 मिशन है उससे क्या डिफरेंस रहेगा यहाँ पे? ये सर्जिकल सेंटर है, ये सर्जिकल सेंटर है हमारा, उसी से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, वहाँ पे देखा जाएगा पेशेंट, वहाँ पे क्लियरेंस होगी उनकी और यहाँ पे हम सर्जरीज करेंगे। मायो हॉस्पिटल सेक्टर 69 में मैं चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। बाकी हम सेवा के लिए इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं।